Hello, good morning students. Today I will tell you Fleming's right hand rule. Okay. So first of all, what will we do? According to this rule, we have to stretch our thumb, forefinger and middle finger to your right hand. It means this is our right hand. Okay. And this is the thumb. This is thumb. This is forefinger and this is middle finger. Okay, so we stretch thumb, forefinger and middle finger of right hand like this, that they are mutually perpendicular to each other. इस टाइप से हम स्ट्रेच करते हैं कि ये mutually perpendicular होने चाहिए. Okay, ये तीनों. So if forefinger, so what will happen? If forefinger indicates direction of magnetic field, means जो forefinger है ना, जो फोर फिंगर क्या बताती है? इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है. एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. ये जो है मोशन, कंडक्टर जो है, कंडक्टर की मोशन ऑफ कंडक्टर. ओके, कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो मीन्स जो कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये बताता है. ओके, then middle finger will shows the direction of induced current. Okay, then जो middle finger है वो क्या बताएगी? Direction of induced current. Okay, so we can find the induced current, means direction of induced current, with the help of Fleming's right hand rule. Okay, so now what is electric generator? Okay, electric generator is based on electromagnetic induction, which I told you yesterday. Okay, and what does it do? It converts mechanical energy into electrical energy. Okay, so we can get electrical energy from electric generator. Okay, so now an electric generator, and listen, I will tell you electric generator and electric motor. Both are very important in this chapter. Okay, electric generator and electric motor I will explain in next video. Okay, tomorrow and the day after tomorrow. Okay, I will explain it very deeply, but today I told only that it converts mechanical energy into electrical energy. Okay, it is the work and principle of electrical generator. Okay, and electrical generator, there are two type of currents. Okay, first is alternate current, second is direct current, means AC and DC. Okay, and what does AC do? It changes the direction periodically after equal interval of time. इनको एक इक्वल टाइम इंटरवल होता है, उस इक्वल टाइम इंटरवल के बाद ही ये अपनी पीरियोडिकली डायरेक्शन को चेंज करता रहता है एसी में. ठीक है, एंड डीसी एक्चुअली इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, मीन्स कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है इसकी, तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती है टाइम के साथ. जब इन डायरेक्शनल है तो यूनी डायरेक्शनल है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. ओके, एंड दिस इज़ द ग्राफ फॉर एसी, दिस इज़ द ग्राफ फॉर डीसी. ओके, दिस इज़ current, this is the graph between current and time. Both are the graphs between current and time. A is the ampere unit of current, S is the second for unit of time, as second unit of time, A ampere unit of current. Okay, and AC has frequency 50 Hz in India and 60 Hz in America, and it has zero frequency. जब ये यूनिडायरेक्शनल है तो इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज होगी, एंड इंडिया में हम 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक का एसी मीन्स एसी अल्टरनेटिव करंट को हम यूज़ कर सकते हैं, एंड अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है, तो नाउ एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव करंट ओवर द डायरेक्ट करंट. ओके, हियर आर सम एडवांटेज ऑफ एसी ओवर टू डीसी. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंसेस. मीन्स जो बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिक पावर होती है उसमें हम विदाउट एनी एनर्जी, मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती है हमें, ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होती है. ओके,
एंड बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस पे जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसमें कोई भी एनर्जी ना यूज़ करके, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होती है, उसको हम डिटेक्ट और ट्रांसमिट कर सकते हैं. ओके, एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ लो. इस वजह से ही जो ट्रांसमिशन की लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है ना, ओके, वो लो होती है, क्योंकि हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसमिट कर लेते हैं. तो इस वजह से मीन्स इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं इजीली हम AC द हेल्प ऑफ AC. ओके, बट DC से नहीं कर पाते हैं. एंड इन इंडिया द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज़. इसका मतलब ये है ना, इट मीन्स आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड इट चेंजेस इट डायरेक्शन. ओके, तो ये 1/100 सेकेंड मीन्स 0.001. ओके, तो ये इतने सेकंड के बाद ना अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है. इस वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ हो जाती है. ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए, उस वजह से ये 50 हर्ट्ज़ आती है. ओके, फ्रिक्वेंसी तो इंडिया में 50 होती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज़. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर in brief. Okay, understood?